زہرا کو ستایا ہے، جس در پہ میرے بابا تم آتے تھے اس در کو، اور امت کے امیروں نے اور توڑا ہے، جلایا ہے بابا، تیری امت نے زہرا کو ستایا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں پاک پروردگار کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد وآل محمد کی ذات کے لیے۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے آج ذاکرہ اہل بیت ہینا حیدر عنوان لے کے آئی ہیں در بطول، اور در بطول کے تحت ہم گفتگو کریں گے جناب فاطمۃ الزہرا اور سورہ دہر کے اوپر۔ جب ہمارے 12ویں امام غیبت میں گئے ہیں، کچھ عرصے کے بعد خلیفہ وقت کا دربار سجا ہوا تھا، اور وہاں ان کے کچھ وزیروں نے یہ بات کہی کہ جناب مریم نعوذ باللہ افضل ہیں جناب فاطمۃ الزہرا سے۔ انہوں نے بادشاہ نے کہا، خلیفہ وقت نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں جناب مریم کے لیے لفظ آیا ہے یطہرکا، یعنی طاہر بی بی، بطول بی بی۔ اور دوسری دلیل انہوں نے یہ دی کہ پورے قرآن میں سورہ مریم ہمیں ملتی ہے، لیکن سورہ فاطمہ زہرا تو نہیں ملتی ہمیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جناب مریم افضل ہیں۔ وہیں پہ جہاں بادشاہ بھی اعلان کرنے والا تھا کہ واقعی جناب مریم اسے بظاہر نعوذ باللہ افضل لگنے لگی، تو ایک اہل بیت کا چاہنے والا شخص اس دربار میں موجود تھا، وہ ایک دم سے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا بادشاہ وقت سے کہ کجا فاطمہ اور کجا مریم، کہاں مریم اور کہاں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ؟ مریم تو ان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہے۔ کہا تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جناب مریم کے لیے ایک لفظ آیا ہے یطہرکا، جبکہ فاطمہ الزہرا کے لیے لفظ آیا ہے یطہرکم تطہیرا۔ اور پھر جہاں جناب مریم کے لیے صورت ملتی ہے سورہ مریم، وہاں جناب فاطمہ الزہرا کے لیے ایک نہیں دو شان میں سورہ نازل ہوئی ہیں، ایک سورہ کوثر ہے اور ایک سورہ دہر ہے، جو جناب فاطمہ الزہرا کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اس شخص نے، یہ اہل بیت کے چاہنے والے نے کہا کہ اگر اور دلیل چاہیے تو قرآن میں ہے، سورہ مریم میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک بار جناب مریم اپنے گھر کی تنہائی میں، گھر کے ایسے گوشے میں تھی کہ جہاں ان کی والدہ بھی ان کے پاس نہیں جا سکتی تھی، لیکن اسی گوشے تنہائی میں جناب جبرائیل نازل ہوئے، اور جناب جبرائیل ایک دم سے جیسے نازل ہوئے، جناب مریم ایک دم سے چونک گئیں، تم کون ہو؟ جناب جبرائیل کو کہنا چاہیے تھا کہ میں فرشتہ ہوں، کہا نہیں انا رسول ربک، قرآن کہہ رہا ہے کہ جبرائیل نے اپنا تعارف کروایا انا رسول ربک کہہ کے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور یہ وہی فرشتہ ہے کہ جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ چادر میں تطہیر کے نیچے اپنے باپ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ تھیں، تو جبرائیل جیسے فرشتے کو ہمت نہیں ہوئی کہ چادر میں داخل ہو جائے۔ جبرائیل چادر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور وہاں مریم کی تنہائی میں آ گیا، تو مریم افضل ہوئی ہے جناب فاطمہ الزہرا۔ پھر اس نے آخر میں یہ دلیل دی کہ اگر یہی دیکھنا ہے کہ کون افضل ہے تو یہ دیکھو کہ جناب مریم کے بیٹے کو شہادت نہیں ملی، جبکہ جناب فاطمہ الزہرا کے دونوں بیٹوں کو شہادت نصیب ہوئی۔ اور اگر اور بھی زیادہ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ان میں سے افضل کون ہے تو انتظار کرو کہ جب فاطمہ الزہرا کا 11واں بیٹا اس دنیا میں تشریف لائے گا، جناب قائم اس دنیا میں ظہور کریں گے، تو دیکھنا کہ عرش سے عیسیٰ بھی آئیں گے۔ پھر یہ دیکھنا کہ نماز کون پڑھائے گا، نماز عرش سے۔ اسی واقعے کو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نماز عرش سے آ کے پڑھیں گے عیسیٰ پس مہندی، نماز عرش سے آ کر پڑھیں گے عیسیٰ پس مہندی، نبوت سے جو بڑھ جائے امامت ہو تو ایسی ہو۔ کہا پھر دیکھنا، کیونکہ عیسیٰ اگر اللہ کے امر سے ہیں تو جناب مہندی اولی الامر ہیں۔ کیا مرتبہ ہے جناب فاطمہ الزہرا کا، اور جن کی شان میں سورہ دہر کا نزول ہو رہا ہے۔ ایک بار امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے۔ دیکھیں اس گھرانے میں بیماریاں نہیں ہوتی، یہ نور کی خلقت ہیں، لیکن
हमें कुछ दिखाने के लिए, हमें कुछ बताने के लिए। दोनों शहज़ादे बीमार हैं, नाना आए हैं बेटों को देखने। अभी ड्योढ़ी तक ना पहुँचे थे कि जिब्राइल आ गए, कहा या रसूल अल्लाह बेटी से कहिए कि मन्नत माने रोज़ों की। बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी माँ के बच्चे बीमार हो जाएं तो रोज़ों की मन्नत मानिए, मन्नत मानिए, बच्चों को शिफा मिल जाएगी। जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा ने भी मन्नत मानी, मौलाए कायनात ने भी मन्नत मानी कि बच्चों को शिफा मिल जाए, हम रोज़े रखेंगे। दोनों शहज़ादों ने भी मन्नत मानी। इसी घर की कनीज़ हैं जनाब फ़िज़्ज़ा, जनाब फ़िज़्ज़ा ने भी मन्नत मानी कि अगर बच्चों को सेहत मिली तो मैं रोज़े रखूँगी। पाँचों ने, जब बच्चे माशाल्लाह सेहत याब हो गए, पाँचों ने रोज़ा रखा। 5 रोटियां सामने हैं, रोज़ा अफ्तार का वक्त है। इतने में दक्कुल बाब हुआ। ये सूरह दहर पढ़ रही हूँ मैं। दक्कुल बाब हुआ, सदा आई कि मैं फ़कीर हूँ, कोई है जो फ़कीर का पेट भरे। जनाब अली ने फ़ौरन अपनी रोटी उठा के फ़िज़्ज़ा को दी कि फ़िज़्ज़ा मेरी रोटी इस फ़कीर को दे दो। इधर जनाब अली ने अपनी रोटी दी, इधर फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी रोटी दी। दोनों शहज़ादों ने देखा, दोनों शहज़ादों ने अपनी अपनी रोटियां भी दी। अब जनाब फ़िज़्ज़ा ने देखा तो फ़ौरन अपनी भी रोटी दे दी। 5 रोटियां लेके जनाब फ़िज़्ज़ा आई हैं। और तफसील लिखने वालों ने लिखा है, तमाम तर तफसील लिखने वालों ने ये बात लिखी कि वो जो दरवाज़े पे आया था वो कोई आम फ़कीर नहीं था, वो फ़रिश्ता था। फ़रिश्ता वहाँ से आते हैं रोटियां लेने के लिए इस दर पर। दूसरे दिन फिर इसी तरह हुआ, फिर पाँचों ने रोज़ा रखा, फिर एक दक्कुल बाब हुआ। अब कुरान कहते हैं अब मस्कीन आया। ये भी कोई आम मस्कीन नहीं था, अल्लाह का फ़रिश्ता था, और कहा कि है कोई जो इस भूखे को खाना खिला दे। पाँचों ने फिर अपनी रोटियां दे दी। तीसरे दिन फिर पाँचों ने रोज़ा रखा, फिर इसी तरह दक्कुल बाब हुआ। अब कुरान कहता है कि असीर आया था, वो कोई आम असीर नहीं था, फ़रिश्ता था अल्लाह का, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की इजाज़त से आया था। पाँचों ने फिर अपनी रोटियां दे दी। 15 रोटियां 3 दिन इस घर से गई हैं। इनकी शान में अल्लाह को इनकी ये अदा इतनी पसंद आई, इस घराने की ये अदा इतनी पसंद आई कि 31 आयतों का कसीदा बना के सूरह दहर को नाजिल कर दिया। एक रोटी के बदले में यानी 2 आयतों का नज़ूल। हम देखते हैं कि कुरान की आयत कितनी वज़नी है, कितना वज़न है, क्योंकि कुरान वो किताब है कि सूरह हशर में परवरदिगार कह रहा है कि अगर मैं पत्थरों पे नाजिल करता तो पहाड़ों पे नाजिल करता तो पहाड़ चकनाचूर हो जाते। मैंने देखा, हम देखते हैं कि तारीख़ में एक बार शहनशाह मिस्र ने चाहा कि जनाब यूसुफ़ को ख़रीद ले, उसे यूसुफ़ पे प्यार आ गया, यूसुफ़ को ख़रीदना चाहता है। उसने एक पल्ले में जनाब यूसुफ़ को रखा और दूसरे पल्ले में अपने पूरे ख़जाने की दौलत, हीरे जवाहरात जितनी भी दौलत थी उसने दूसरे पल्ले में रख दी। लेकिन क्या देखता है कि जनाब यूसुफ़ का पल्ला तो हिलता भी नहीं है, पूरा ख़जाना उसने खाली कर दिया। तारीख़ बताती है कि शहनशाह मिस्र ने, बादशाह मिस्र ने ऐलान कर दिया कि औरतों से जाके ऐलान कर दो कि अगर किसी के पास सोने की 1 अंगूठी है, अगर आज देगा तो कल हम 2 अंगूठियाँ करके वापस करेंगे। सोना ख़वातीन की कमज़ोरी हुआ करता है। वो जो छुपा हुआ सोना था ना, वो भी औरतों ने निकाल निकाल के दे दिया कि कल दुगना होके मिलेगा। सारा ख़जाना मिस्र का, और ये मिस्र कोई आम वाला आज वाला मिस्र नहीं है, उस ज़माने का मिस्र, चारों तरफ के इतराफ़ के जितने भी इलाके हैं वो मिस्र में शामिल थे। सारी दौलत दूसरे पल्ले में, लेकिन जनाब यूसुफ़ का पल्ला हिलता भी नहीं है। बादशाह मिस्र के चेहरे पे पसीना आया, नबूवत देख रही थी, जनाब यूसुफ़ की नबूवत देख रही थी, मुस्कुराई। कहा क्या चाहता है? कहा तुझे ख़रीदना चाहता हूँ। कहा अच्छा फिर कागज़ और कलम ला। बादशाह मिस्र ने फ़ौरन कागज़ और कलम का इंतज़ाम किया। सलाम है उस बादशाह मिस्र पे कि जिसने नबूवत के कहने पे फ़ौरन कागज़ और कलम ला के दे दिया। जनाब यूसुफ़ ने एक आयत लिखी और दूसरे पल्ले में रख दी। इधर वो आयत दूसरे पल्ले में आई है। यहाँ तारीख़ लिखने वालों ने 2 बातें लिखी हैं कि जैसे ही वो आयत दूसरे पल्ले में आई, जनाब यूसुफ़ का पल्ला एकदम से ऊंचा हो गया, और दूसरी रिवायत ये है कि दोनों पल्ले बराबर आ गए। मुझे इससे गर्ज़ नहीं है कि जनाब यूसुफ़ का पल्ला ऊंचा हो गया या दोनों पल्ले बराबर आ गए, लेकिन मैंने देखा कि एक आयत के बदले में पूरी नबूवत तुल गई। कितनी वज़नी है कुरान की आयत। सोचिए कि फ़ातिमा ज़हरा के घर से जो रोटी गई है उसका वज़न क्या होगा। इतनी वज़नी है ये इस घराने की रोटियां कि एक रोटी के बदले में उसने 2 आयतें उतारी हैं। क्या वज़न है इन रोटियों का। यहाँ मैंने ज़रा सा सोचा कि 3 दिन तक रोटियां गई हैं,
यानी 15 रोटियां गई हैं 3 दिन तक। तो मैंने सोचा कि इस घराने में होता ये है कि एक दिन काम जनाब फ़ातिमा ज़हरा करती हैं और एक दिन घर का सारा काम जनाब फ़िज़ा करती हैं। तो पॉसिबल ये है कि या तो 2 दिन जनाब फ़िज़ा ने रोटियां पकाईं और एक दिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने रोटियां पकाईं, या फिर सूरत हाल ये होगी कि 2 दिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने रोटियां पकाईं और एक दिन फिर जनाब फ़िज़ा ने। तो ये मसला हल कैसे हो, कैसे पता चले कि 2 दिन किसने रोटियां पकाईं और एक दिन किसने? मैंने कहा परवरदिगार इस मसले को तो हल कर। फिर जब मैंने आया मुबाहला देखी तो आया मुबाहला कह रही है पहले आया अबना आना फिर निसाना, दरमियान में है औरत, पहले बेटे हैं फिर नफ्स है, फिर औरत है, फिर नफ्स है, यानी अव्वल व आखिर कोई और है, दरमियान में निशान है। और इसी तरह मुबाहले के मैदान में हम देखते हैं कि बीबी के आगे बाबा है यानी रसूल खुदा है और बीबी के पीछे अली हैं, यानी रसूल के कदमों पे कदम रखती हुई जनाब सैयदा हैं और जनाब सैयदा के कदमों पे कदम रखते हुए अली मुर्तज़ा हैं। तो यकीनन 2 दिन रोटियां गई होंगी जनाब फ़िज़ा की, क्योंकि परवरदिगार को इस घराने का पर्दा बड़ा अजीज़ है। ये हिजाब परवरदिगार है, ये परवरदिगार को बड़ा अजीज़ है। यानी फ़ातिमा ज़हरा की रोटियों का भी नीचे भी पर्दा रहा और ऊपर भी पर्दा रहा। जनाब फ़िज़ा की रोटियां 2 दिन गईं और एक दिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा की। और जो फ़रिश्ते आए थे उन्होंने फ़ौरन सूरह दहर पढ़ रही हूँ, कहा हम मशकूर हैं तुम्हारे, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। चाहिए तो ये था कि जनाब फ़िज़ा खुश हो जाती कि फ़रिश्ते शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन इस घर की ग़ुलाम का ज़रा स्टाइल तो देखें, उनका बात करने का अंदाज़ तो देखें। मुझे तुम्हारा शुक्रिया नहीं चाहिए। जनाब फ़िज़ा कहती हैं मुझे तुम फ़रिश्तों का शुक्रिया नहीं चाहिए, ये तो मैंने ली वजुल्ला के सदक़े में रोटियां दी हैं, हम लोगों ने वजुल्ला के सदक़े में रोटियां दी हैं। परवरदिगार ने कहा तुम इनका शुक्रिया, फ़रिश्तों से कह रहा है परवरदिगार, सूरह दहर है, तुम इनका शुक्रिया अदा ना करो, मैं परवरदिगार इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या मर्तबा है इस घराने का जिसका शुक्रिया परवरदिगार करे। उसे ये अदा इतनी पसंद आई इस घराने की रोटियां देने की कि वो शुक्रिया अदा करता हुआ नज़र आता है। सिर्फ यही नहीं कि शुक्रिया अदा किया, बल्कि जज़ा में, इस रोज़ा रखने की जज़ा में उसने जन्नत दे दी, इस घराने को जन्नत अता कर दी। चाहिए तो यह था सिर्फ शुक्रिया अदा कर देता, नहीं, जन्नत भी दे रहा है। और जन्नतियों की कि जो इनसे मोहब्बत करेगा, ये घराना वो घराना है जो इनसे मोहब्बत करेगा उसे जज़ा में जन्नत मिलेगी। और जन्नतियों की पहचान क्या बताइए, सूरह दहर है। जन्नतियों की पहचान क्या है कि जब उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो उनके हाथों में चांदी के कड़े पहनाए जाएंगे। इसीलिए इधर शियान हैदर कर्रार के चांद देखते हैं मुहर्रम का और हाथों में हथकड़ियाँ पहन लेते हैं। हमें जन्नत में जाने से पहले चांदी के कड़े पहनने की आदत जो है, क्या मर्तबा है इस घराने का। बहुत से मुकाम हमें ऐसे मिलते हैं तारीख़ में कि जहाँ जनाब सलमान मौजूद हैं और जनाब फ़िज़ा भी मौजूद हैं, और जनाब सलमान से फ़िज़ा कहती हैं कि मैं घर की कनीज़ हूँ, मैं अंदर की कनीज़ हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा अफजल हूँ। एक बार जनाब फ़िज़ा ने अजीब बात कही जनाब सलमान से, कहा सलमान तुम जानते हो रसूल से पहले जन्नत में जाने वाली मैं फ़िज़ा हूँ। सलमान ने तैश में आ गए, फ़िज़ा क्या कह रही हो, बेशक तुम घर के अंदर की कनीज़ हो, लेकिन ये मर्तबा कि तुम रसूल से भी पहले जन्नत में चली जाओगी। कहा चलो रसूल के पास, मैं तुम्हें रसूल से पूछवाती हूँ। दोनों आए हैं रसूल के पास, रसूल बैठे हुए हैं, रसूल के साथ अली मुर्तज़ा भी हैं, गोद में इमाम हसन और हुसैन भी हैं। जनाब फ़िज़ा ने देखा रसूल को और जनाब सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह जानते हैं ये फ़िज़ा क्या कह रही हैं। कहा फ़िज़ा बेटी ने ऐसा क्या कह दिया। कहा ये कह रही है कि जन्नत में आपसे भी पहले जन्नत में जाएंगी। रसूल मुस्कुराने लगे, फ़िज़ा भी मुस्कुराई। कहा रसूल की बात करते हो, मैं तो अली मुर्तज़ा से भी पहले जाऊंगी। सलमान एकदम से चौंक पड़े, कहा देखें रसूल अल्लाह ये क्या कह रही हैं कि अली मुर्तज़ा से भी पहले जाएंगी। कहा मैं तो इमाम हसन और हुसैन से भी पहले जाऊंगी। रसूल मुस्कुरा रहे हैं और फ़िज़ा कहती जा रही हैं कि इमाम हसन और हुसैन की क्या बात करते हो, मैं तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से भी पहले जाऊंगी। कहा सुन रहे हैं आप। रसूल ने कहा आओ फ़िज़ा से ही पूछते हैं, फ़िज़ा ये क्यों कह रही हो कि हमसे भी पहले जन्नत में जाओगी। कहा या रसूल अल्लाह पिछले जुम्मे को आप ही ने तो फरमाया था कि सबसे पहले जो जन्नत में जाएंगी वो फ़ातिमा ज़हरा जाएंगी, और फ़ातिमा ज़हरा जिस ऊँकनी पे सवार होके जाएंगी उस ऊँकनी की महार फ़िज़ा के हाथ में होगी। तो जब महार फ़िज़ा के हाथ में होगी तो फ़िज़ा तो जन्नत में जनाब फ़ातिमा ज़हरा से भी पहले दाखिल होंगी।
किसी ने मासूम से सवाल किया था कि फ़ातिमा जनाबे बीबी फ़ातिमा ज़हरा को का नाम फ़ातिमा क्यों है? कहा इनका नाम फ़ातिमा इसलिए है, फ़ातिमा कहते हैं कता करने वाली को, जो काट दे। कहा बीबी अपने मुहिब्बों को दोज़ख की आग से काट देंगी, दोज़ख की आग से दूर कर देंगी। जो इस घराने से मोहब्बत करेगा बीबी उसे जन्नत में दाखिल करेंगी। क्या घराना है। और आज के इसी एपिसोड के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपकी होस्ट इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपके सामने हाजिर होंगी।